উত্তরপ্রদেশের সবকটি মাদ্রাসাকে অবৈধ ঘোষণা করে দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আর লোকসভা ভোটের আগে এই রায়ের ফলে দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। রাজনীতির কারবারিরা মনে করছেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে কিন্তু মুসলিম ভোট ভালোই প্রভাব পড়তে চলেছে উত্তরপ্রদেশে। কেন এই রায় দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট? হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, উত্তরপ্রদেশ বোর্ড মাদ্রাসা এডুকেশন অ্যাক্ট 2004-কে লঙ্ঘিত হয়েছে। এই মাদ্রাসাগুলিকে অসাংবিধানিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে উচ্চ আদালতের তরফে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি বিবেক চৌধুরী এবং বিচারপতি সুভাষ বিদ্যার্থী একই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন এইসব মাদ্রাসার ছাত্রদের প্রথাগত স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিতে হবে, যাতে এইসব মাদ্রাসার পড়ুয়ারাও দেশের আর 5টা ছাত্রের মতো পড়াশোনার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। অংশুমান সিং রাঠোর নামে এক ব্যক্তির দায়ের করা রিট পিটিশনের ওপর ভিত্তি করেই মাদ্রাসাগুলিকে অসাংবিধানিক আখ্যা দেয় এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনৌ বেঞ্চ। এর আগে মাদ্রাসাগুলির ফান্ড সংক্রান্ত অভিযোগ ওঠে উত্তরপ্রদেশের মাদ্রাসাগুলিতে বেআইনিভাবে ফান্ড আসে। প্রায় 13,000 মাদ্রাসাকে এর আগে অসাংবিধানিক বলে উল্লেখ করে মাদ্রাসা বন্ধের সুপারিশ করেছিল উত্তরপ্রদেশ সরকারের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম। বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগ উঠেছিল এইসব মাদ্রাসার বিরুদ্ধে। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সিট গঠন করা হয়। তদন্ত শেষ করে 13,000 অবৈধ মাদ্রাসাকে বন্ধের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন তদন্তকারী দলের সদস্যরা। এই ঘটনাটা উত্তরপ্রদেশের। সিটের কাছ থেকে অবৈধ 13,000 মাদ্রাসাকে বন্ধের সুপারিশ সংক্রান্ত রিপোর্ট পেয়ে কাজও শুরু করে দেয় উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার। আরও জানা গিয়েছে, বেআইনি মাদ্রাসাগুলির অধিকাংশই গড়ে উঠেছে নেপাল সীমান্তবর্তী মহারাজগঞ্জ, শ্রাবস্তি সহ মোট 7টা জেলায়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত 2 দশকের বেশি সময় ধরে বিশ্বের একাধিক দেশের আর্থিক সহায়তায় মাদ্রাসাগুলি গড়ে উঠেছে। মাদ্রাসায় বসে ভারত বিরোধী কার্যকলাপের পরিকল্পনা নেওয়া হয় বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল। বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগে নেপাল সীমান্তবর্তী 500-রও বেশি মাদ্রাসার কাছ থেকে আয় ও ব্যয়ের হিসেব চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই হিসেব দিতে ব্যর্থ হয়েছে মাদ্রাসাগুলো। সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের জন্য হাওলার মাধ্যমে মাদ্রাসার নির্মাণে বিশ্বের একাধিক দেশ থেকে অর্থ পাঠানো হতো বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তদন্তকারীরা। আপনাদের শোনাবো বিজেপি নেতা মহসিন রাজা কি বলছেন। देखिए, मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता और उनके अनुपालन में हमें काम करना है। लेकिन जिन्होंने भी रिट फाइल की थी और उस पर जो भी हमारे अधिवक्ताओं ने वहां बात रखी, उससे माननीय उच्च न्यायालय सहमत नहीं हुआ, क्योंकि हम बहुत पहले से, आपको याद होगा, हमने बहुत पहले से आवाज उठाई थी कि हमारे उत्तर प्रदेश में जब से आदरणीय योगी सरकार आई थी, हम लोग इसको मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ले जा रहे थे। हमने कंप्यूटरीकरण किया था, हमने एनसीईआरटी पढ़ाई लागू की थी, लेकिन इसको लेकर एक बड़ा धड़ा जो मुस्लिम धर्मगुरुओं का था वो विरोध पर आ गया था कि सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। हम नहीं, हम चाहते हैं कि आप, जो हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, हम उसको साथ लेकर चल रहे थे। उस धरातल पर आपको ले जाना चाह रहे थे कि आपको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, लेकिन नहीं मानते थे, आप बहस करते थे। आज माननीय उच्च न्यायालय का ये फैसला आ गया, अब इसका अनुपालन तो होगा। तो जाहिर सी बात है, 560 जो हमारे यहाँ ग्रांट पा रहे मदरसे थे, अनुदानित मदरसे थे, तो अब उनकी अनुदान तो बंद हो गई। तो जाहिर सी बात है कि अगर यही बच्चे 560 मदरसों के बच्चे अगर रिलीजियस पढ़ाई ना करके सामाजिक शिक्षा ले रहे होते, रिलीजियस पढ़ाई हम घर में पढ़ लिए ना, हमें बता दिया गया ना अल्लाह एक है, हम कलमा पढ़ते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सब बता दिया गया ना मुझे, हम नमाज पढ़ते हैं, मेरे माँ बाप ने सब मुझे बताया है। लेकिन इसके लिए मदरसे खोलकर खाली धार्मिक शिक्षा दी जाए और उससे ग्रांट ली जाए सरकार से, तो ये तो जाहिर सी बात है संवैधानिक तो था ही। लेकिन अब उसको लेकर चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों ने प्रलोभन देने के लिए, लोगों को मदद पहुंचाने के लिए यही एक तरीका अपना लिया था, लेकिन ये संवैधानिक तरीके से तो ठीक नहीं था। तो अब क्या होगा? क्या ये सारे मदरसे अब बंद हो जाएंगे? नहीं सर, हम बंद हो जाएंगे का सवाल ये है कि ग्रांट तो बंद हो ही जाएगी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और आदेश के अनुपालन में सरकार फैसला करेगी ही। जाहिर सी बात है, हमें उनके अनुपालन में काम करना है। लेकिन जो बच्चे हैं उनको कहीं और दूसरे शिक्षण संस्थानों में भेजा जाएगा, उसके लिए व्यवस्था करेगी सरकार। ऐसा निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। आसान शब्दों में क्या समझा जाए, इस फैसले का क्या अर्थ निकाला जाए? आसान शब्दों में यही समझा जाए कि आप रिलीजियस पढ़ाई अगर घर पर रहकर कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन अगर आप रिलीजियस पढ़ाई
करा रहे हैं मदरसे के नाम पर और मदरसों को ग्रांट मिल रही है तो वो असंवैधानिक है, इसलिए उसको रोक दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से। और ये बहुत पहले से मैं मानता था कि ये होना था, क्योंकि इसलिए होना था क्योंकि आपकी हठधर्मी नहीं चलेगी, हमारी हठधर्मी नहीं चलेगी। जो बात संविधान में है वो चलेगी, संविधान से देश चलता है, हमारी हठधर्मी से नहीं चलता है। अब वो लोग कहां हैं जो ऐतराज किया करते थे? हमारे उन बच्चों का नुकसान हुआ ना, उनका भविष्य तो गया ना। अगर यही बच्चे मॉडर्न एजुकेशन ले रहे होते तो आज डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस हो गए होते। अब मुर्शी मुअल्लिम लेकर आप घूमिए, क्या कर लेंगे आप? हमेशा इल्जाम हमारे ऊपर है। हम बेहतरी करें तब भी इल्जाम हमारे ऊपर है, हम बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की बात करें तब भी इल्जाम हमारे ऊपर। भारतीय जनता पार्टी से पता नहीं आपको क्या परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की नीति पर देश को आगे लेकर चल रही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। শোনাবো এবার মাদ্রাসার মুখপাত্র দারুল উলুম কি বলছেন। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मदरसों के सिलसिले में अभी मंजर आम पर आया है और हम ये बात कहना चाहेंगे कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह हक़ और इख्तियार दिया है कि हम अपने इदारे कायम करें, अपने तालीमी इदारों को कायम करें ताकि वहां से मुसलमान तालीम हासिल कर सके। जाहिर सी बात है कि मदरसा बोर्ड भी हमारी सरकार का एक अंग है और उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को सरकार गवर्न करती है और ये कहना भी बिल्कुल गलत है कि वहां पर सिर्फ मजहबी तालीम दी जाती है। वहां पर कुरान और हदीस की तालीम के साथ साथ कंप्यूटर की तालीम होती है, साइंस की तालीम होती है, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। और अब तो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत बहुत से मदारिस ऐसे हैं कि जिनमें बाकायदा स्मार्ट क्लास का भी निफाज किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस फैसले को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है इस पर नजरसानी करने की जरूरत है और इस फैसले को यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की भी जरूरत है ताकि मदरसों के सिलसिले में जो शक और शुबात हैं उनको दूर किया जा सके। আরেক মুখপাত্র ইয়াসুফ আব্বাস তার বক্তব্য শোনাই। मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार रहा है और बड़े अफसोस की बात है आज जब यह सुनने को मिला कि माननीय उच्च न्यायालय के जरिए से मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करता हूं कि ऐसा कानून बनाए जिससे मदरसा बोर्ड को पुनः फिर से जिंदा किया जा सके, इसलिए कि इससे बहुत लोगों की, हजारों लोगों की रोटी रोजी वाबस्ता है। लिहाजा वो घर जो मदरसा बोर्ड की वजह से चल रहे हैं उन घर की रोटी रोजी बिल्कुल बंद हो गई है। लिहाजा मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर वो पुनः विचार करके उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश करें। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানান।